Welcome to the third video, that is how to break down the solutions. In the previous video, we talked about the problem statement part of it, that how a vague problem statement is given to you. You ask more and more clarifying questions, you add more and more context into the problem statement and narrow down the scope of that given problem statement. And we also got to know that how dangerous it is to directly jump onto solutions because that makes your chances of reaching the right results very much less. So in this video, we are going to cover about how to think upon the solutions, how to think exhaustively about all the possible cases of that narrowed down scope in a structured manner. So let's start with an example of a tree. Suppose this tree, some leaves have turned yellow and we want to make them green again. So what do you think? Where should we water this to make those leaves green again? So you have options like leaves, stems, or the roots. So most of you obviously know the answer that we must water the roots to make the leaves green again. But here's the twist. Suppose you can water only a particular root only and not all the roots at once. So where will you water it now? You got three options, A, B, and C. That's a tricky one, right? So, thought of it? The answer is that all of them are similar but not the same. The reasoning behind it is given on the right side. You can read it. So, given that कि all the root tips are not exactly the same, which means कि उनमें कुछ कुछ difference हो सकते हैं कि ए पे पानी डालने पे ज़्यादा पानी डालना पड़े उस लीफ को ग्रीन करने के लिए, बी पे थोड़ा कम पानी डालना पड़ेगा, या सी पे हो सकता है सबसे कम पानी डाल के हाईएस्ट एफिशिएंसी रूट सी की हो जो कि हमारे लीव्स को ग्रीन कर दे. सो बिफोर चूजिंग द राइट रूट वी मस्ट नो अबाउट ईच एंड एवरी रूट सो दैट वी कैन मेक अ गुड डिसीजन कि हाँ ये वाला रूट सबसे बेस्ट है, इसमें पानी डाल के इस लीव को ग्रीन बहुत जल्दी कर सकते हैं. ये एनालॉजी अगर थोड़ी थोड़ी समझ आई, सो सेम वे वी हैव टू कवर एंड थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबल स्कोप्स ऑफ दैट गिवन नैरोड डाउन प्रॉब्लम स्टेटमेंट. And as we cover all the scopes of that problem statement, we will get to know that, okay, now these are the possible solutions that we have. And now we have to choose the best output from the given solutions. So this is where a KPI tree helps us. KPI tree basically means breaking a bigger piece into multiples of smaller things which are easy for us to understand. So let's take a very basic example of profit. सपोज मैं एक 100 रुपए की चीज़ बेच रहा हूँ एंड उसको बनाने में मेरे को 80 रुपए लग रहे हैं. सो मेरा प्रॉफिट कितना आया? 20 रुपीज़. सो इफ़ यू थिंक अबाउट प्रॉफिट, इट इज़ फंक्शन ऑफ रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट. क्या प्रॉफिट कभी भी इसके बाहर जाएगा? कि मतलब मैंने उस चीज़ को कितने में बेचा, अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी डिजिटल प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट, कुछ भी. उसको मैंने कितने में सेल किया माइनस उसको बनाने में मुझे कितना खर्चा आया. So, did you notice that profit can be broken down into two buckets and profit won't go outside these two buckets? तो अब हमें अगर प्रॉफिट बढ़ाना होगा तो या तो हम रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं या फिर हम कॉस्ट को घटा सकते हैं. अब now we have smaller buckets of revenue and cost. So to break down the revenue further, we must know the business model of a company. And business model of a company एकदम लेमैन भाषा में बोलूं तो वो कंपनी पैसा कमा कहाँ से रही है, उसके क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेज हैं, एंड उस रेवेन्यू सोर्सेज को अचीव करने के लिए उसके कॉस्ट कहाँ कहाँ लग रहे हैं. तो बिजनेस मॉडल हमें कंपनी का बताता है कि ये कंपनी यहाँ यहाँ से पैसे कमा रही है और ये चीज़ें करने में उसको ये इतना इतना कॉस्ट लग रहा है. सो बिजनेस मॉडल का बेसिक आइडिया होगा. सो यू विल बी एबल टू ब्रेक डाउन दोज रेवेन्यू बकेट्स एंड कॉस्ट बकेट्स more in a better way. So suppose a company has three revenue sources, revenue source 1, 2, 3, and say we can break it down further and further जितना भी हम लोग exhaustively सोच पा रहे होंगे. Same way we can break down the cost into like fixed cost and the variable cost. अब what I could have done is I could have mentioned like cost 1, cost 2, cost 3, cost 4, ऐसे भी कर सकते थे, पूरा रायता फैला सकते थे यहाँ पे. But why did I chose to break down into two buckets first, that is fixed cost and variable cost, and then put the subheadings under it? This makes the structure of my more clear and it helps me to cover all the possible scopes without missing out on any. अब मैं ऐसे कॉस्ट वन कॉस्ट टू कॉस्ट थ्री करके लिखता, हो सकता है मैं कुछ भूल जाता, बट अब मैंने उसको दो बड़े बकेट्स में तोड़ा, पहले फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, एंड अब मैं उसके अंदर फिक्स कॉस्ट के सारे कॉस्ट वन कॉस्ट टू कॉस्ट थ्री लिखूं
तो my chances of missing out on something reduces. So that's why our aim is to make buckets and then smaller buckets and then more and more smaller buckets so that we do not miss out on something. This is the basics of a KPI tree. अब जो बिजनेस मॉडल की मैंने बात करी, सो देर आर मेजरली 7 types of business model that most of the companies have, and as an aspiring PM or an analyst person, you must have knowledge about these so that you could break down these things into smaller parts very easily. So what are they? Like, first is e-commerce direct sales, second is manufacturing or production, third is marketplace aggregator model, next is freemium, that is free plus some paid upgrades, next is advertising, another one like subscription fees, and next last is service fees. Up, these are the 7 most commonly used business models. There could be many more, but majorly ये use होते हैं. Now let us see them one by one. So first is like e-commerce and direct sales. So few of the companies following this kind of business model can be Flipkart, DMart, Myntra, जो हमारे आसपास के किराना राशन स्टोर्स हैं वो सब हो गए. तो जो भी प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स को बेच रहे हैं, वो सेगमेंट इस बिजनेस मॉडल के अंदर लाई करता है. सो नाउ इफ वी वांट टू कैलकुलेट द रेवेन्यू ऑफ दीज काइंड ऑफ कंपनीज, हाउ विल यू डू दैट? अब जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है? कुछ सामान बेच रहा है. अब सपोज वन पर्सन बाइज 100 रुपी कार्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स, अनदर पर्सन बाइज 200, सम थर्ड पर्सन बाइज ऑफ 300. अगर टोटल रेवेन्यू निकालना होगा तो हम कैसे करेंगे? एक बंदे ने 100 रुपये खरीदा, 100, 200, 300, टोटल हो गया मेरा 600. इसको बेटर वर्ड्स में लिखूं मैं अगर, तो वी कैन मेक इट लाइक एवरेज ऑर्डर वैल्यू 100, 200, 300. सो हमारा एवरेज हो गया 200 एंड 3 कस्टमर्स वी हैड, सो 200 × 3 दैट इज 600. सो इस टाइप का जो भी बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं कंपनीज, उनके रेवेन्यू वी कैन कैलकुलेट एज एवरेज ऑर्डर वैल्यू इनटू द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स. Next, we have subscription fees. Famous company examples like Netflix, Amazon Prime. For their revenue, it would directly be the average subscription fees they have into number of users taking that subscription. अब average subscription fees क्यों लिखी है यहाँ पे मैंने? Some users might buy of 200, कुछ लोगों ने 400 खरीदा, कुछ लोगों ने 600 खरीदा. तो जो भी हमारी average subscription fees है, multiply by the total number of users, gives us the revenue of subscription model based companies. Next, we have premium plus paid upgrades. इसमें कंपनीज आती हैं लाइक बम्बल, लिंक्डइन, यूट्यूब. अब इसका रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके जो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, उनमें से आधे से ज़्यादा तो मेरे फ्री वाले हैं, वो पैसे ही नहीं दे रहे हैं मेरे को. तो इसका रेवेन्यू कैसे आएगा? टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज ऑफ यूजर कन्वर्जन इनटू द अपग्रेड फी. अब ये परसेंटेज ऑफ यूजर्स कन्वर्जन क्या है? अब सपोज लिंक्डइन के पास 100 लोग हैं एंड सिर्फ 10 लोगों ने उसका प्रीमियम खरीदा, तो जो मेरा परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन परसेंटेज हो गया, वो हो गया मेरा 10%. ऐसे ही हमने ओवरऑल कंपनी लेवल पे एक एवरेज परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन निकाल लिया. टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इनटू दैट परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन इनटू द अपग्रेड फीस gives me the right answer for my revenue and not like directly multiplying by the total number of customers. Next, we have marketplace aggregator. Few of the companies that you might have heard, Ola, Housing, Zomato. अब इनका रेवेन्यू कैसे निकालें? अब ये क्या है? मार्केट प्लेस एग्रीगेटर. दिस मीन्स कि एक स्टेक होल्डर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं. लाइक ओला के स्टेक होल्डर्स हो गए ड्राइवर्स एंड दी राइडर्स, जो हम लोग कैब बुक कर रहे हैं वो हो गए, एंड जो हमारे कैब ड्राइवर्स हैं वो भी. तो अब ओला जो है वो दोनों से पैसे कमा रहा है, सिर्फ हमसे नहीं ले रहा है, वो ड्राइवर से भी कुछ फीस ले रहा है एंड जो राइडर है उससे भी कुछ फीस ले रहा है. सेम गोज फॉर जोमेटो. लाइक जोमेटो फूड डिलीवरी की बात करें तो जोमेटो कुछ कमीशन रेस्टोरेंट पार्टनर से लेता है, कुछ हमसे लेता है. इस टाइप की कंपनीज का रेवेन्यू निकालना होगा. व्हाट वी विल डू इज we will multiply the we will take the sum of the services or the stakeholders aggregated multiply by the charge per stakeholder. सपोज राइडर से 10 रुपये मिले एंड ड्राइवर से इसने 15 रुपये लिए, इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द ड्राइवर साइड हो गया हमारे पास एक, और इस सारे का समेशन ले लेंगे तो हमारे पास हमारा इसका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. नेक्स्ट वी हैव द एडवर्टाइजिंग मॉडल. इसमें जो फेमस कंपनीज हैं लाइक गूगल एड्स, मेटा एड्स, जो अपन ऐसे इंस्टा स्क्रॉल करते करते ऐड देखते हैं, तो उसके इनको पैसे मिलते हैं. अब इसका रेवेन्यू कैसे आएगा? एडवर्टाइजिंग कंपनीज का सबसे ज़्यादा मेन थिंग क्या है? सबसे पहले अगर कोई कंपनी मेरे ऊपर ऐड चला रही है तो वो क्या चाहेगी? विजिबिलिटी, कितने नंबर ऑफ व्यूज़ आए. एंड व्यूज़ से ज़्यादा मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा कि वो बंदा मेरा ऐड देख के मेरा प्रोडक्ट खरीद ले. Revenue for these advertising models can be calculated as the impressions, that is total number of views, multiply by the CTR. CTR क्या होता है? हमारा क्लिक थ्रू रेट.
कि अब अगर 100 लोगों ने ऐड देखा, उनमें से 10 लोग कन्वर्ट होके मेरे प्लेटफॉर्म पे आ गए, सो वो मेरा सीटीआर होगा। अब कुछ एडवर्टाइजिंग मॉडल्स इंप्रेशंस पे पैसे देती है, कुछ सीटीआर के ऊपर पैसे देती है कि जितना ज़्यादा सीटीआर होगा उतना ज़्यादा पैसे मिलूंगा। तो इनटू मल्टीप्लाई बाय दी जो भी उनका फीस होगा, सो दिस विल गिव अस द रेवेन्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग मॉडल कंपनीज। नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। दिस इज वेरी सिंपल, लाइक महिंद्रा हो गया, बीकाजी हो गया, मिल्टन हो गया, HUL हो गया, ITC हो गया। इनका सिंपल कि अब ये लोग प्रोडक्शन में है, फैक्ट्री टाइप की आउटलेट्स हैं इनकी। तो अब ये जितना भी सामान बना रहे हैं इनटू उसकी जो प्राइस है, so number of SKUs sold into the average price of the product. Next is last is service fees. So people like architecture firms, urban company, doctors, ये वाले इस बकेट में लाई करते हैं जो कि कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अपना टाइम या फिर अपना स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड उसके बदले कुछ एक फीस चार्ज कर रहे हैं। सो हाउ विल यू कैलकुलेट देयर रेवेन्यू कुड बी लाइक द एवरेज सर्विस फीस दे आर चार्जिंग मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट्स दे सर्व। एवरेज सर्विस फीस, अब जैसे एक आर्किटेक्ट है, एक बंदे से 1 लाख रुपए ले रहा है, एक बंदे से 3 लाख रुपए ले रहा है, सो उसका सम करके हमारे पास इसका रेवेन्यू आ जाएगा। सो अ क्विक DIY क्वेश्चन फॉर यू गाइस, नाउ दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द 7 टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स, आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ दीज 5 कंपनीज एंड send it to me in the comment section below. Let's see who gets it right. So let's move on. While breaking down any KPI tree, one thing that you must keep in mind is MISI. Now, what does this MISI stands for? Mutually exclusive and collectively exhaustive. Very tricky word, right? Confused नहीं हुए ना? Let me explain it to you simple manner. You will get to know what it is all about. So जो MISI में ME mutually exclusive है, this means that if we are breaking a term into smaller pieces, then each piece should be mutually exclusive. अब जैसे कि हमने प्रॉफिट को दो पार्ट में तोड़ा था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अब रेवेन्यू और कॉस्ट जो हमने दो स्मॉलर बकेट्स तोड़े, ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए, इनके ऊपर कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए कि वी डू नॉट काउंट एनीथिंग ट्वाइस, या फिर कुछ हम कम काउंट ना कर दें। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या ध्यान रखता है हमारा, कि जो भी हमने बकेट्स को तोड़ा बीच में, वो दोनों आपस में एक दूसरे पे कुछ भी किसी भी तरीके से ओवरलैप नहीं करने चाहिए। And what does collectively exhaustive means? This means that the pieces that we break down should collectively cover all the possible scopes. अब जैसे रेवेन्यू को हमने रेवेन्यू सोर्स 1 2 3 में तोड़ा था, तो अब ये जो समेशन ऑफ ऑल दी रेवेन्यू सोर्सेज हैं, ये हमारा कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होना चाहिए। इसका मतलब कि वो कंपनी जो है उन रेवेन्यू सोर्सेज के अलावा कहीं और से पैसे नहीं कमाने चाहिए। जितने भी रेवेन्यू सोर्सेज हैं उसके, हमें उसको सारे को लिस्ट करना है। वी डू नॉट हैव टू मिस आउट ऑन एनी पर्टिकुलर रेवेन्यू स्कोप। सो मीसी का टोटल क्या मतलब हो गया, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि हम कोई चीज़ दो बार ही काउंट ना कर लें, एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव कि हमें सारे स्कोप्स को कवर करना है। दिस इज वॉट मीसी स्टैंड्स फॉर। एंड वाइल ब्रेकिंग डाउन अ KPI ट्री, यू मस्ट कीप दिस इन माइंड। इसको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल। ये वेन डायग्राम याद है सबको? इसका सम कैसे निकालते थे अपन? A यूनियन B यूनियन C में आप देख रहे हो कि इंटरसेक्शंस को माइनस कर रहे हैं, देन उसको एक बार ऐड कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम कोई भी चीज़ को डबल काउंट ना कर लें। लेट्स टेक अ एग्जांपल यूजिंग अ प्रोडक्ट थिंग, लाइक लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ फ्लिपकार्ट। सो नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट कैसे कैसे चलेगा? एंड्रॉइड यूजर्स, वेबसाइट यूजर्स और iOS यूजर्स। सो अब मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हो गए? 250 मिलियन। सॉर्टेड, करेक्ट, राइट? बट what if the person who is using Flipkart from Android is same who is using the website? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ फोन पे फ्लिपकार्ट चला रहा हूँ, मेरा मन किया मैंने अपने लैपटॉप पे खोल लिया फ्लिपकार्ट। सो अब मैं, तुमने क्या किया, उसमें तो दो बार काउंट कर लिया मेरे को। द वेन डायग्राम जिसमें तीन इंडिविजुअल बकेट्स थे एक्चुअली लुक समथिंग लाइक दिस। सो अब जो हमारे कॉमन नंबर ऑफ यूजर्स हैं, लाइक एंड्रॉइड यूजर्स एंड वेबसाइट यूजर्स में 10 मिलियन का जो इंटरसेक्शन है, वो हमने दो बार काउंट कर लिया था। सो वी हैव टू रिमूव दोज इंटरसेक्शन पॉइंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ यूजर्स। अब सपोज हमें रेवेन्यू कैलकुलेट करना होता एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारी 100 रुपीज़ की होती, तो 250 मिलियन इंटू 100, हमने तो बहुत बड़ा नंबर इमेजिन कर लिया, बट एक्चुअल नंबर क्या था हमारा? 230 इंटू 100। सो यू गेट टू नो दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना कितना इंपॉर्टेंट है। एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव कैसे बने, इसके लिए लेट्स मूव अहेड। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कोचिंग सेंटर। इसका हम लोग केपीआई ट्री अच्छे से ब्रेक करके देखते हैं। दिस विल गिव यू अ सेंस कि हाउ टू ब्रेक डाउन अ केपीआई ट्री वाइल फॉलोइंग द मीसी अप्रोच। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है सबको, कि यू आर द ओनर ऑफ द कोचिंग सेंटर एंड द रेवेन्यू ऑफ योर कोचिंग सेंटर इज स्टैग्नेंट फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स।
फाइंड द बेस्ट पॉसिबल स्कोप्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ योर कोचिंग सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। कोचिंग का रेवेन्यू, कोचिंग कहाँ कहाँ से पैसे कमाता है? सो इट कुड बी ऑफलाइन कोचिंग जो बच्चे जाके कोचिंग में पढ़ रहे हैं, कुड बी ऑनलाइन कोचिंग जो हम लोग ऐसे कोर्सेज खरीद लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, नेक्स्ट कुड बी स्टडी मटेरियल जो मॉड्यूल्स एंड ऑल बेच रहे हैं, एंड अदर कुड बी टेस्ट सीरीज जैसे फिट जीएलएन के टेस्ट सीरीज चलते हैं। सो कोचिंग का रेवेन्यू कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू दीज फोर रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंडिविजुअली: ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज। अब नाउ लेट्स ब्रेक डाउन ईच ऑफ दिस बकेट। लाइक ऑफलाइन कोर्सेज, तो अब ऑफलाइन कोर्सेज कैसे कर सकते हैं डिवाइड? एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच बैच मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ बैचेस इनटू द एवरेज फीस पर बैच। डू यू सी दैट कैसे एक बकेट था हमारे पास कोचिंग रेवेन्यू का, उसको हमने चार बकेट्स में तोड़ा, एंड उसके जो चौथा लास्ट जो लेयर थी उसके भी तीन बकेट्स टूटे। अब डू यू थिंक दैट वी शुड स्टॉप ओवर हेयर? नो, हम इसको भी आगे बहुत ज्यादा ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे नंबर ऑफ बैचेस हैं उसको हम कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि 11th क्लास के बैचेस हो गए, 12th क्लास के बैचेस हो गए, ड्रॉपर के बैचेस हो गए। द नंबर ऑफ बैचेस कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन इन टू वेरी मच एक्सटेंट। सो यहां पे मैं इधर ही रुक रहा हूं, बट वी कैन एक्सटेंड ऑल ऑफ दिस टू अ वेरी लार्जर एक्सटेंट। So revenue for this particular bucket could be average number of students in each batch multiply by the number of batches multiply with the average fees per batch. Next bucket we have is of online course. We have recorded courses and live courses. Again breaking down into smaller buckets so that we do not miss out on something. And for recorded courses we have number of students into price of online course. Same goes for the live courses, and the revenue of this bucket could be the sum of the two. नेक्स्ट वी हैव स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल में मॉड्यूल सेल हो रहे हैं, बुक सेल हो रहे हैं, डीपीपी सेल हो रहे हैं। अगेन इनका जो रेवेन्यू होगा एवरेज कॉस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लास्ट अप वी हैव इज टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज could also be offline test series, online test series, and the revenue will again be average cost of test series multiply by the number of students. अब डिड वी मिस ऑन समथिंग हेयर? अभी तक हमने जितने भी बकेट्स बनाए थे कि कोचिंग का रेवेन्यू, उसके चार बकेट्स, हर एक बकेट को हमने इंडिविजुअली तोड़ के देख लिया। व्हाट डू यू थिंक? आर वी मिसिंग आउट ओवर हियर ऑन समथिंग? एनी गेसेस? Exactly. Clarifying questions. We missed on the clarifying questions before. Like we just heard the problem statement, started jumping on the solutions. अब लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज एक बच्चा उठ के आया मेरे पास कि सर, मेरे कोचिंग वाले तो हॉस्टल भी देते थे, मेस सर्विसेज भी देते थे, उससे भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाते थे, हमने तो उसे यहाँ कंसिडर ही नहीं किया। सो हाउ विल यू गेट टू नो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्या क्या रेवेन्यू सोर्सेज हैं जो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव की हम बात कर रहे थे कि हमें सारे सोर्सेज कवर करने हैं? हाउ विल यू अचीव दैट? दैट इज बाय आस्किंग क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस। अब सपोज वी वुड हैव आस्क्ड दिस क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस कि सर, मुझे कोचिंग के रेवेन्यू के ये चार बकेट्स तो पता है, क्या कुछ और भी तरीका है जिससे कोचिंग पैसे कमा रहा है? तो देन ही वुड हैव आंसर्ड कि वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज थ्रू विच वी अर्न रेवेन्यू। दैट इज पीजी और हॉस्टल सर्विसेज है हमारी, हमारे पास टिफिन सर्विसेज हैं, वी हैव फोटो कॉपी शॉप्स, वी हैव कैंटीन्स, वी हैव लाइब्रेरी, वी हैव वैन एंड बस सर्विसेज। अब इतना सब कुछ आप सोच लेते खुद से? very difficult, right? So this is the importance of asking clarifying questions. Again and again we are repeating this because it is of that importance. ठीक है? अब if I show you the exact complete tree of the coaching revenue, do you see how exhaustively it has just spread out on so many branches? कि अब पहले हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि कोचिंग का रेवेन्यू बढ़ाना है। अब हम किस लेवल तक आ चुके हैं कि अब अगर हम ऑफलाइन कोर्सेज की बात करें तो अब हम कोचिंग का रेवेन्यू बढ़ाने जैसे एक वेग टर्म से ऑफलाइन कोर्स में जाके अगर हम एक एवरेज फीस ऑफ बैच बढ़ा दें या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बैच बढ़ा दें कि अभी हम 40 बच्चों का बैच रखते थे, अगर हम उसको 45 भी कर देंगे तो जो हमारा ट्री है वो बैक ट्रैक होकर हमारे रेवेन्यू को बढ़ा देगा। तो समझ आ रहा है कि लाइक जो एक्शनेबल्स थे हमारे, जैसे जैसे हम ट्री के डाउन में जाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ट्री को ब्रेक करते जा रहे हैं, एक्शनेबल सोचना हमारे लिए उतना ज़्यादा ईजी होता जा रहा है कि कोचिंग रेवेन्यू इंक्रीज करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बैच इंक्रीज करना है। व्हाट डू यू थिंक द बेटर एक्शनेबल इज? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बैच कैन बी इंक्रीज्ड। सो द एम ऑफ अस वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द कोचिंग। हाउ वी गोना अचीव दिस? तो अब जो मैं तुम्हारे ट्री वाले एग्जांपल पे वापस आते हैं कि फ्यू ऑफ द लीव्स आर टर्न्ड येलो एंड इसको ग्रीन करना है, एंड वी हैव मल्टीपल रूट्स in the form of the multiple possible scopes of making that
क्वेश्चन स्टेटमेंट का आंसर निकालने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्कोप्स हैं। सो सिमिलरली अब कोचिंग रेवेन्यू को तुम वो येलो लीफ मान लो, और ये जो पूरी हमने रूट्स बनाए हैं इसके, ये इसके सारे पॉसिबल स्कोप्स हैं सोल्यूशन के। अब बेस्ट कौन सा सोल्यूशन है, हाउ टू डिसाइड दैट, दिस वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। बिकॉज हम कर तो कुछ भी सकते हैं कि हम मान लो टिफिन सर्विसेज ही है, कि हम अभी खाना तो बना ही रहे हैं, हम अभी 10 बच्चों को टिफिन दे रहे हैं, हम 50 बच्चों को टिफिन दे देंगे, तो हमारा कॉस्ट भी नहीं बढ़ा एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो टिफिन सर्विस ले रहे हैं वो बढ़ गए, तो हमारा रेवेन्यू बढ़ गया। या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बैच बढ़ा दिए हमने, 40 बच्चों की जब 50 बच्चे रख दिए, उससे भी रेवेन्यू बढ़ सकता है। सो ये जो चीज़ है रेवेन्यू, जो येलो लीव है, वो ग्रीन तो हर एक सोल्यूशन से हो जाएगा, बट कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है, कौन सा वो बेस्ट रूट टिप है जिसपे पानी देके हम इसको ग्रीन करें अगेन, ये हम सीखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि हाउ टू चूज द राइट सोल्यूशन। So this video was all about how to discover all the possible scopes। अब कौन सा राइट स्कोप चूज करना है, दिस वी विल सी इन लेटर ऑन वीडियोस। नाउ दैट वी हैव लर्नड ऑल ऑफ दिस टिल नाउ, लेट्स सी हाउ मच यू गॉट टू नो। So I'm giving you an example problem statement and you have to solve that. The problem statement is Swiggy, the food delivery business, not the Instamart and all, wants to increase its profit. What all possible scopes do we have for achieving this? Now just remember the word profit over here. Profit is the function of revenue minus the cost. So you just do not have to think about the revenue part. You also have to think about the cost side of it. I know it is a very tricky question and you have to use a lot of brains, and still you might not get to the right answers. For that, we got your back over here as well. You can share your answers on this WhatsApp group. Me and my friends are there. We will review your answers and give you all the insights and all the things that you have missed in the KPI tree and how better way you could have solved it. And we'll have some more fun discussions in the group as well. So this is it for this video and I hope to see your answers in my DMs. Till then, goodbye.